Now, let us try to find equation of a curve, of a tangent to a curve at some point x1, y1. So, हम किसी पॉइंट x1, y1 पे tangent की इक्वेशन पता करने की कोशिश करते हैं and let us say the curve जिसपे हमें tangent की इक्वेशन पता करनी है, that is y equals to fx. So, what we are trying to find is the tangent to the curve y equals to fx at point x1, y1. तो हमें tangent की इक्वेशन लिखनी है. Now, जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, tangent is even a line, तो जब भी हमें किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो हमें दो चीजें तो हमेशा पता होनी ही चाहिए. पहला, वो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है और दूसरा, उस लाइन का स्लोप क्या है. अगर ये दोनों चीजें पता हो तो हम लाइन की इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं. इन दिस सिचुएशन वी नो द पॉइंट थ्रू विच अवर लाइन इज पासिंग. सो हमारी लाइन पास करती है x1, y1 से. नाउ वी हैव टू फाइंड इज द स्लोप ऑफ द लाइन. हमें लाइन का स्लोप पता करना है. ये पता करा तो हम लाइन की इक्वेशन पता कर पाएंगे आसानी से. नाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, व्हाट वी हैव इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व. Using this equation of the curve, we can find the slope of the tangent at point x1, y1. हमने पिछले डिस्कशन में क्या पढ़ा था? So the geometrical interpretation of a derivative used to say me that derivative is the slope of the tangent to the curve at that point. So if I find dy by dx at point x equals to x1, so what will this give me? This will give me slope of tangent to the curve y equals to fx at point x equals to x1 and y equals to y1. So dy by dx at x equals to x1 gives me the slope of the tangent to the curve y equals to fx at point x equals to x1. So यहाँ से हमें पता चल गया x1, y1 पे हमारी tangent का slope. So now we know both the things. Point जिससे हमारी लाइन पास करती है, slope of the line. So we can easily write the equation of the line. So the equation of tangent through point x1, y1 to the curve y equals to fx would be x minus x1 equals to dy by dx at x equals to x1 into x minus x1. So this is the equation of tangent at point x1, y1. dy by dx को मैं even लिख सकती हूँ d by dx of fx. It is going to be the same thing at x equals to x1. So ये है हमारी tangent की equation. Now let us try to understand something about this equation. इस equation को और डिटेल में स्टडी करते हैं. तो let us say ये है हमारा कर्व, ये है पॉइंट P और इस पे अभी अभी हमने tangent की इक्वेशन पता की है. ये है हमारा पॉइंट x1, y1 और हमारे कर्व की इक्वेशन है y equals to f of x. Okay. Now let us try to understand something. फर्स्ट चीज जो हम समझते हैं, अगर हमें दिया हो कि हमारी tangent जो है it is parallel to x axis, तो ये जो slope है of the tangent वो क्या हो जाएगा? 0. This means dy by dx would be even equals to 0 at that point. So if a tangent is parallel to x axis, so slope of the tangent would be 0 or dy by dx at that x equals to x1 would be 0. तो मैं लिख सकती हूँ if tangent is parallel to x axis, dy by dx at x equals to x1, this value would be 0. Second, if the tangent is parallel to y axis, ये केस था जिसमें tangent was parallel to x axis, तो slope क्या हो गया था? 0, because tan theta in this case would be 0. Now if the tangent is parallel to the y axis,
So the angle which it will make with the y-axis is pi by 2 and tan pi by 2 is infinity. So if tangent is parallel to y-axis, dy by dx at x equals to x1, this value would be infinity. So अगर हमें dy by dx एक किसी पॉइंट पे 0 मिलता है तो हमें तभी समझ जाना चाहिए कि इस पॉइंट पे जो टैंजेंट का स्लोप है वो है 0, मतलब टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। और अगर dy by dx मिलता है इन्फिनिटी तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो टैंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल है। नाउ देयर आर सम अदर केसेस इवन, मैं इसे यहां से रब कर देती हूँ। नाउ if they say that our tangent is equally inclined to both x axis and y axis, अगर वो कहे कि हमारी tangent जो है वो x और y axis के equally inclined है, मतलब क्या हुआ कि जो tangent है वो 45 डिग्री एंगल बना रही है x axis के साथ और y axis के साथ, तभी equally inclined हो पाएगी। तो मैं कह पाऊंगी कि जो tangent का slope होगा वो होगा ±1। So if tangent is is equally inclined to both the axes, then dy by dx at x equals to x1 would be ±1। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आसान सा कॉन्सेप्ट था। तो स्ट्रेट लाइंस की कॉन्सेप्ट है, बस अब हम उन्हें टैंजेंट के स्लोप के टर्म्स में लिख रहे हैं। नाउ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और टू वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स विच आई रियली विश यू टू नोट डाउन। ये कुछ शॉर्टकट्स है टैंजेंट की इक्वेशन पता करने के लिए जो काफी यूजफुल होंगे। सो द फर्स्ट इज, लेट अस से हमारे पास एक सेकंड डिग्री कोनिक की इक्वेशन है ऐसी, AHX प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वेयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। हमारे पास एक सेकेंड डिग्री कोनिक की इक्वेशन है। सो वी हैव अ सेकेंड डिग्री कोनिक की इक्वेशन ऑफ द फॉर्म AX स्क्वेयर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वेयर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल्स टू 0। और हमें इस कोनिक पे टैंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। आई एम वेरी मच एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड दैट इज सेकेंड डिग्री कोनिक। और हमें टैंजेंट की इक्वेशन पता करनी है एट सम पॉइंट x1, y1। सो देयर इज अ शॉर्टकट टू फाइंड दिस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, हम x स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 और xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस x1y डिवाइडेड बाई 2। तो हम क्या कर रहे हैं, x स्क्वायर को रिप्लेस कर रहे हैं x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करें y1 से, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 से और xy को रिप्लेस करेंगे xy1 प्लस x1y डिवाइडेड बाई 2। जब हम इन सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, द इक्वेशन दैट वी गेट will be the equation of the tangent to the curve at point x1, y1 for this second degree conic. So this is a shortcut or a very fast trick to find equation of a tangent at point x1, y1 and this is just valid for a second degree conic of this type of form. तो हम पहले उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे इस तरीके से और फिर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हो तो आसान सा तरीका है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए, dy by dx की वैल्यू निकालिए, फिर इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट इस फॉर्म में लिखिए और जब जो इक्वेशन आपको मिलेगी दैट विल रिजेंबल दिस इक्वेशन व्हिच विल गेट बाय रिप्लेसिंग ऑल दीज वैल्यूज। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट टू फाइंड
a tangent for a second degree conic. The next very important note or next short trick which I want you guys to learn is कि अगर हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है which is passing through origin. This time it is not necessarily a second degree curve, any curve which passes through origin. So equation of the tangent at origin is obtained by equating the lowest degree terms to 0. So for a curve passing through origin, so for a curve passing through origin, equation of tangent at origin, so for a curve passing through origin, equation of a tangent at origin is obtained by equating lowest degree terms to 0. मैं इसका एग्जाम्पल देती हूं. Let us say we have x to the power 4 minus 4y to the power 4 plus let us say x square minus 4y square plus 13x minus 14y, this is equals to 0. So let us say हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है और हमें इस पे tangent to the this curve at normal की इक्वेशन पता करनी है. Now one thing we should verify is this curve passing through origin. Yes, it is passing through origin. Now we have to find the equation of tangent to this curve at origin. So formula क्या है? Lowest degree terms को 0 से equate कर दो. यहाँ पे lowest degree terms क्या है? 13x minus 14y. इसको हम 0 से equate कर दें तो we'll get 13x minus 14y. This is equals to our equation of tangent which is equals to 13x equals to 14y. So ये हो जाएगी हमारी equation of tangent. So हमने 5 important points यहाँ पे क्या पढ़े? Tangent parallel to x axis, dy by dx would be 0. Parallel to y axis, dy by dx would be infinity. Equally inclined to both the axes, dy by dx is 1. Second degree conic, if you have to find the equation of tangent, shortcut, replace x square by xx1, y by y by 1, x by x plus x1 divided by 2, y by y plus y1 divided by 2 and x y by x1 y plus y x y1 divided by 2. और अगर हमें किसी भी कोनिक के लिए जो ओरिजिन से पास होता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पता करनी है ओरिजिन पे, तो लोवेस्ट डिग्री टर्म्स को 0 से इक्वेट कर दो. These are 5 very important properties related to tangent of to any equation to any curve. और इसमें ये 2 शॉर्टकट्स तो प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे कैलकुलेशंस को आसान कर देते हैं. ये सिंप्लीफाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन. सो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन से इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. छोटे छोटे इलस्ट्रेशन से हम चीजें और आसानी और क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं. अब कुछ इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट पे. तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट इलस्ट्रेशन. सो राइट द क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट थीटा ऑन द कर्व x equals to a into theta minus sin theta and y equals to a into 1 minus cos theta. So the question is we have to find tangent to the curve at point theta where x is equals to a theta minus sin theta and y is equals to a 1 minus cos theta. So मैं पॉइंट थीटा पे इस कर्व के लिए इक्वेशन पता करनी है. नाउ यहां पे x थीटा पे डिपेंडेंट है और y भी थीटा पे डिपेंडेंट है.
हमें बेसिकली स्लोप पता करने के लिए क्या करना है, dy by dx एट पॉइंट थीटा निकालना पड़ेगा. बट व्हाट वी सी हियर इज कि y इज डिपेंडेंट अपॉन थीटा and even x is dependent upon theta. तो internally I can say that y is even dependent upon x. तो यहां से अगर हमें dy by dx की वैल्यू निकालनी पड़ी तो हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, which is dy by dx would be dy by d theta divided by dx by d theta. This would be the value of dy by dx. What is dy by d theta? This is d by d theta of what is y? 1 minus cos theta into a. And what is dx by d theta? This is differentiation of theta minus sin theta into a with respect to theta. So this is equals to a into 1 का differentiation 0 और cos थीटा का डिफरेंस cos थीटा का माइनस साइन थीटा. सो वी व्हाट वी गेट इज a इंटू साइन थीटा. डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला तो सबको अच्छे से याद है ना. हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं डिस्कस करेंगे, वी विल जस्ट डिस्कस एप्लीकेशंस राइट नाउ. एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ d थीटा माइनस साइन थीटा? दिस इज 1 माइनस cos थीटा इंटू a. सो दिस इज साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख देती हूँ 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. सो दिस कंप्लीट डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाई 2. सो स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट थीटा is equals to cot theta by 2 और dy by dx at this point theta is equals to cot theta by 2. अब हमें tangent की इक्वेशन पता करनी है. So this is y minus y1 into dy by dx at x equals to x1 into x minus x1. ये होती थी इक्वेशन ऑफ अ tangent. यही अप्लाई करते हैं y minus what is y1 in this case? 1a into 1 minus cos theta. So this is a into 1 minus cos theta. dy by dx at x at theta हमें क्या मिला? This is cot theta by 2. So cot theta by 2. यहाँ पे हम x equals to x1 लेके we'll take theta equals to theta because हमें theta पे slope of tangent निकालना है, फिर equation of tangent निकालना है. This is equals to x minus x1. And what is x1? It is a into theta minus sin theta. So this is our equation of tangent for this curve at point theta. आसान सा क्वेश्चन था. dy by dx निकालना था और उसे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करना था. बस ध्यान रखना था कि हमें यहाँ पे dy by dx अप्लाई करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. दिस वाज इंडीड एन इजी क्वेश्चन एक्चुअली. एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं. सो आई होप एवरीवन इज गेटिंग द कॉन्सेप्ट नाउ. हमें यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज पता करनी है वो है स्लोप ऑफ द टैंजेंट एंड विच कैन बी फाइंड आउट बाय फाइंडिंग द डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट. Now let us solve the next illustration. So question लिखिए. Prove that all the points on the curve y square equals to 4a into x plus a sin x by a at which the tangent is parallel to x axis lie on a parabola. So the question says we have a curve whose equation is y square equals to 4a into x plus a sin x by a. एंड हमें प्रूव करना है कि इस कर्व पे वो सारे पॉइंट्स जिन पे टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो एक पैराबोला पे लाई करते हैं. तो सबसे पहले तो हम वो पॉइंट्स ही पता कर लेते हैं जिन पे टैंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. वो पता कर लिया तो फिर हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो सभी पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं. सो let us try to find
the points at which the tangent is equals to at which the slope of the tangent is equals to 0 or tangent is parallel to x axis. So इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो what we get is 2y into dy by dx. We are differentiating this equation with respect to x. So this is equals to 4a into 1 plus a into 1 by a cos x by a, or what we get from here is this is equals to 4a into 1 plus cos x by a, and this is equals to 2y dy by dx, or dy by dx is equals to 4a into 1 plus cos x by a upon 2y. Now we have to find the points at which the tangent is parallel to x axis. मतलब dy by dx is equals to 0. So when dy by dx would be equals to 0, we'll have 4a into 1 plus cos x by a equals to 0. This numerator would be equals to 0. A cannot be equal to 0 because ये question में दिया नहीं हुआ है. So we'll say that 1 plus cos x by a equals to 0, or cos x by a equals to minus 1. From here what I can say is x by a would be 2n pi plus minus pi. Since cos x by a is equals to minus 1, तो हम कह पाएंगे कि x by a would be equals to 2n pi plus minus pi. And one thing we can conclude from here is sin x by a would be equals to 0. So for all the points for which tangent is parallel to x axis, sin x by a is going to be equals to 0. So what was the equation we were having? Y square equals to 4a x plus a sin x by a, और हमें क्या मिला अभी for all the points which lie on for which the tangent is parallel to x axis, sin x by a is equals to 0. So अगर यहाँ पे हम sin x by a equals to 0 put कर दें, what we get is y square equals to 4a into x plus 0, or y square equals to 4ax. And what is this? This is the equation of a parabola. So what we get is for all the points for which tangent is parallel to x axis, y square equals to 4ax, and hence these points lie on a parabola. So this was indeed a nice question. बस हमें ये कॉन्सेप्ट पता करना था कि tangent parallel है तो जो स्लोप tangent होगी उसका स्लोप 0 होगा. स्लोप को 0 से इक्वेट करके हमें ये चीज मिली और हमें इस चीज को यहाँ पुट करके इसी चीज को एनालाइज करना था. It was indeed a good question. Now एक और इलस्ट्रेशन इसी चीज पे सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन टेंजेंट्स ऑफ इक्वेशन. सो वंस अगेन मैं वही समझाने की कोशिश कर रही थी स्टार्टिंग में भी कि दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल टॉपिक. इसमें हम जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स और जितने ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा होगा. बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन द सेम. थ्योरी ज्यादा नहीं है, बस हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं इसमें, तभी हम इस टॉपिक पे अच्छी ग्रिप बना पाएंगे. और इस टॉपिक पे यूजुअली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं बिकॉज इसमें हम एप्लीकेशंस के कॉन्सेप्ट भी पता कर पाते हैं और साथ में हम इसमें डिफरेंशिएशन तो यूज करते हैं, तो इसमें यूजुअली काफी अच्छे हाइब्रिड प्रॉब्लम्स बनते ही बनते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व द लास्ट इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक. अब एक और इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक पे, दैट इज ऑन इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स. सो क्वेश्चन लिखिए, दिस इज आवर लास्ट इलस्ट्रेशन ऑन दिस टॉपिक. इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स डिस्कस करेंगे. सो द क्वेश्चन इज, if the tangent to the curve root x plus root y equals to root a at any point, so we have a curve whose equation is root x plus root y equals to root a. They say the tangent to this curve at any point on it cuts the x and y axis is at respectively p and q. Prove that OP plus OQ equals to a. OP plus OQ equals to
A exactly. So क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन दी है और हमें कहा गया है कि इस कर्व पे कोई भी टैंजेंट किसी भी पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P और Q पे रिस्पेक्टिवली। तो लेट अस से ये है हमारा कर्व, इस पे हमने कोई पॉइंट लिया R और इस R पे जो टैंजेंट है वो इस कर्व को इंटरसेक्ट करती है x एक्सिस पे पॉइंट P पे और y एक्सिस पे पॉइंट Q पे। और हमें क्या प्रूव करना है दैट दिस डिस्टेंस OP plus OQ, that is summation of this distance OP and OQ is always equals to A. ये हमें प्रूव करना है। Now just to develop the approach to solve this question, हमें इन दो इंटरसेप्ट्स का समेशन 0A प्रूव करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का। So one thing is sure कि अगर मैं इस टैंजेंट की इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो हमारे लिए चीजें काफी आसान हो जाएगी। सो इफ यू ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ दिस टैंजेंट इन टर्म्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स, सो हम फिर प्रूव कर पाएंगे दैट द समेशन ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू A। सो इसी चीज को करने की कोशिश करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू राइट द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू दिस कर्व इन इंटरसेप्ट फॉर्म। सो व्हाट इज द इक्वेशन वी हैव राइट नाउ इज √x + √y इक्वल्स टू √A। सबसे पहले तो स्लोप पता करते हैं, तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी गेट इज 1/2 √x प्लस 1/2 √y into dy by dx. This would be equals to 0. √a का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा because a is a constant. So what we get from here is dy by dx is equals to minus 1/√x into √y. So dy by dx is equals to minus √y/√x. So यहाँ से मुझे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट एनी पॉइंट x, y क्या मिल जाएगी? That would be y minus small y. This is equals to slope which is minus √y upon √x. This is equals to capital X minus small x. इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, so what we'll get is y upon √y minus √y. This would be equal to minus x upon √x minus √x. Or if I try to solve it further, what we get is y upon √y plus x upon √x. This is equals to √x plus √y. And what is the value of √x plus √y? हमारे पास इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या है? √x plus √y equals to √a. So I can write √x plus √y is equals to √a. So when I try to reduce this in intercept form, तो इक्वेशन क्या बन जाती है? y upon √a into √y plus x upon √a into √x. This is equals to 1. So this is our standard equation of a line in intercept form. So यहाँ से मैं कह पाऊंगी that OP, which is the x intercept, this is equals to √a into √x, and OQ, which is the y intercept, this is equals to √a into √y. And what we have to find is OP plus OQ. So OP plus OQ from this equation would be √a into √x plus √y, and this value we know from the equation of the curve is equals to √a. So this is equals to √a into √a, which is equals to a. So what we get is OP plus OQ. This complete equation is equals to a. यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच समझ में आई।
हमें इंटरसेप्ट्स के एडिशन को एक इक्वल प्रूव करना था। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे तो हमारे लिए काफी आसानी होगी। तो हमने यही किया, हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया। जैसे ही इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया तो हमें x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू आसानी से मिल गई, और इसी को हमने जब इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व किया तो वी गॉट दिस इक्वल्स टू 8। सो अभी हमने आज क्या डिस्कस किया? वी स्टार्टेड द इंट्रोडक्शन, द बेसिक नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस देखे जहां पे डेरिवेटिव्स को यूज करके सिचुएशंस को सॉल्व करना काफी इजी हो जाता है। एंड देन वी स्टार्टेड विद टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू एनी कर्व। आज हमने इक्वेशन ऑफ टैंजेंट सीखा, हाउ कुड वी फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व टैंजेंट टू एनी कर्व। हमने उस कुछ टैंजेंट की इक्वेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कुछ शॉर्टकट्स देखे, और फिर उस पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेशंस देखे। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे और उसके आगे के टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, बट वील कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट, विल स्टार्ट विद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स। सो थैंक यू।